I take this opportunity to thank Navigation Guidance and Control team, Propulsion team, Sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced, and वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। भारत हारता नहीं है और उसी की वानगी आज की सबसे बड़ी तस्वीर, जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान की आखिरकार भारत ने करवा दी। और ये माहौल देखिए, न्यूज रूम में खुशी का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह से काम हो रहा था, चेहरे पर शिकन थी, लेकिन
बाद और इस सफलता के बाद चेहरों से वो शिकन हट गई और ये देखिए लड्डू वितरित किए जा रहे हैं। खुशी में हमारे देश में लड्डू वितरित करने का, मिठाई वितरित करने की हमारे देश में परंपरा है। जहां पर कोई भी खुशियां हो तो सबसे पहले मुंह मीठा करवाया जाता है और हमारे न्यूज रूम के साथी जो सुबह से काम कर रहे थे, इनफैक्ट कई दिनों से काम कर रहे थे, उनका मुंह मीठा करवाना तो बनता ही है। एक परंपरा हमारे देश में और भी है और वो ये कि जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है, अच्छा काम होता है, खुशी का माहौल होता है तो गाना बजाना तो होता ही है। तो वो भी आपको दिखाएंगे और लिए चलते हैं न्यूज रूम की दूसरी तरफ जहां पर होगा गाना बजाना, क्योंकि आज भारत ने अंतरिक्ष में क्रांति का एक नया अध्याय लिख डाला है। एक ऐसा अध्याय जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी और जैसा कि मैंने पहला भी कहा कि हमारे देश में कोई भी शुभ मुहूर्त हो और गाना बजाना। कुछ करिए बस बस बड़ बोले है, कुछ करिए कोई तो चल जिद पड़िए, डूब दरिए जा मरिए। हाँ कोई तो चल जिद पड़िए, डूब दरिए जा मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। गानों में, सड़कों के गड्ढों में, ईदों में दीजों में उनका राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई कीजे। कस है ना मस है नी, जिद है दो जिद है जी, पिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। चल जिद पड़िए, चल जिद पड़िए, हाँ चल जिद पड़िए, डूब दरिए जा मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तरीके से जश्न मन रहा है पयोधी, वो हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हम पहुंचेंगे अपनी सहयोगी रंजना के पास जो मिठाई खा रही है, लड्डू के साथ सबका मुंह मीठा करा रही है, लेकिन उससे पहले बेंगलुरु का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी जो लगातार इसरो के उस सेंटर में मौजूद हैं जिसने इतिहास रच दिया है। पिनाज, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, और मैं बता रही हूँ खुशी के आंसू क्या होते हैं आज वो हमने अपनी आंखों से बहते हुए देखे। और यहाँ पर मौजूद हर पत्रकार जो कि आमतौर पर सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, अपने इमोशंस पर काफी संयम रखते हैं, लेकिन आज जैसे जैसे एक एक स्टेज जो है वो क्रॉस हो रही थी, वो जो 4 डिफरेंट डिफिकल्ट स्टेजेस थे 20 मिनट के, वो क्रॉस हो रहे थे, जो एक राहत की सांस हम ले रहे थे। और जैसे ही ये देखिए कि यहाँ पर भी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही है। जैसे ही यहाँ पर ये हुआ कि टच डाउन, वो इमेज देखी, उसके बाद कई लोग जो है उनकी आंखें भर आई, कईयों को हमने रोते हुए देखा। पिनाज, हमें लग रहा है आप भी भावुक हुई हैं उस क्षण। जब इतिहास को हमने बनते हुए देखा तो बिल्कुल अनुराग, हम बिल्कुल मैं अपने इमोशंस पर बहुत काबू रखती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत इमोशनल टाइप हूँ, लेकिन आज जब वो टचडाउन की तस्वीर मैंने देखी, उसके बाद जो वो रोंगटे खड़े हुए और कुछ समझ नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि जब आप इतिहास बनते हुए देखते हैं, वो जो लम्हा होता है आपको सिंक ही नहीं होता है कि आप जिस चीज के लिए इतने दिन से पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जिस उड़ान को मैंने श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हुए देखा था, जिस मिशन को मैंने फेल होते हुए देखा था, उसके बाद उसे दोबारा उड़ान भरते हुए देखा था, और आज जब यहाँ पर इस सामने प्रोजेक्टर पर जब वो टचडाउन की तस्वीर आई तो कुछ पल के लिए मुझे खुद समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या है। क्या हमने इतिहास रच दिया, सब हो गया,
कौन ये मुझे एक बार एहसास कराएगा कि हाँ ऑल इज वेल, हमने कर दिखाया। और वो जो लम्हा था, थोड़ी देर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट और उसके बाद एकदम से शांति, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष। और यहाँ पर हर पत्रकार जो है, हिंदुस्तानी पत्रकार थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए थे। हम रिपोर्टिंग, कवरेज, इंस्टा अपडेट, ये सब चीजें पीछे छूट गई थी और उस वक्त एक हिंदुस्तानी जो है हम पर हावी हो गया था। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट थी, चेहरे पर खुशी थी और वो गर्व का भाव था। जैसे ही सोमनाथ जी ने ये ऐलान किया कि इंडिया हैज डन इट, इंडिया ने जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ऐसा करने वाला वो चौथा देश बना है। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस था ना अनुराग, जब उन्होंने कहा कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर, साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बने हैं, तो जो पहला शब्द था, द फर्स्ट कंट्री, तो वो जो शब्द था ना कानों को, वो एक अलग सी खुशी दे रहा था, एक अलग सा एहसास करा रहा था और बेहद गौरवान्वित लम्हा। पिछले लगभग 22 साल के अपने रिपोर्टिंग करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, लेकिन आपकी आवाज की जो खनक है ना, ये खुशी, ये हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। और पूरा इस वक्त जो सेंटर है, वहाँ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी तालियों की गड़गड़ाहट थी, हमारे स्टूडियो में भी, हमारे न्यूज रूम में भी। यासिर भी है वहां पर सेंटर में मौजूद। यासिर, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। वो जो आफ्टर सक्सेस वाली जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो जो एक तरह का सुकून होता है, वो हम देख पा रहे हैं। कितनी देर लगेगी MOX से आने में? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन और 6:04 का वक्त, ये जो है दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा ही काम किया है। इसरो ने चांद पर तो कई देश पहुंचे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई देश पहुंचा है और वो है भारत। गलतियों से सीखा जाता है और एक बार फिर जो है इसरो ने यह साबित किया कि हाँ, गलती हुई थी चंद्रयान 2 के समय, लेकिन उन गलतियों को सुधारा, सीखा और चंद्रयान 3 को फिर से लॉन्च की शुरुआत की गई 2019 में। जैसे ही चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उसी टाइम जो है वैज्ञानिक तैयार हुए थे कि नहीं, हमें फिर से ट्राई करनी है, और वो ट्राई शुरू हुई थी बिल्कुल उसी समय जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था। और आज हम देखते हैं 4 साल के बाद 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली लैंडर विक्रम ने। तो एक ऐतिहासिक दिन है इसरो के लिए, भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए, क्योंकि स्पेस की अगर हम बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, नासा है, ईसा है, कई सारी स्पेस एजेंसीज ऐसी है जिन्होंने हमसे बहुत पहले काम शुरू किया है स्पेस में, लेकिन हमने बाद में शुरू किया और सबसे पहले पहुंच गए हैं दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये दिखा रहा है कि कितनी मेहनत की थी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर, किस तरह से दिन रात जो है वैज्ञानिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, चंद्रयान 1 का लॉन्च देखा था, चंद्रयान 2 का देखा था और आज चंद्रयान 3, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस इस बार लगातार दिखा रहे थे वैज्ञानिक कि नहीं, हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि टेस्टिंग लगातार कर रहे थे, मेहनत की थी, और वो आज साबित हुआ यहाँ पर 6:04 पे कि हम कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम अगर कोई 6:04 से पहले यासिर के चेहरे पर जो तनाव था, वो तनाव अब खत्म हो चुका है। और यासिर को एक बार जरा फिर दिखाएगा स्क्रीन पर, अब यासिर के चेहरे पर भी वही खुशी और वही मुस्कुराहट नजर आ रही है। मुझे लगता है हमारे दोनों सहयोगी बिल्कुल भी वहाँ पर हैं, हम चाहते हैं अगर हम पिनास त्यागी से 5 मिनट और बात करें तो शायद वो अभी रो पड़ेंगी। और वो अभी दोनों ऐसा के लग रहा चेहरे है, बता रहे हैं, वो दोनों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, दोनों के चेहरे बता रहे हैं। तो ये आप देखिए, एक तरफ तो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट थम्स अप, और ये बता रहा है कि हमने जिस एक जीत की ओर कदम बढ़ाया था, वो जीत इस वक्त हमारे हाथ में है। और पहला मुल्क बनना, पहला देश बनना पूरे विश्व में, इसकी खुशी जो है ना वो चरम पर है अनुराग। और ये तस्वीरें बता रही हैं। अर्लीन, बहुत संक्षेप में इस जीत का मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में? ब्रेन ड्रेन रुकेगा, भारत अपने आप में एक बड़ा सेंटर बनेगा। इसमें बेस्ट बात है कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिस में और फील्ड ओपन होंगी, वहाँ पे बच्चे आएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे, सोसाइटी में ग्रोथ होगा। आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा देश को आगे लेकर जाती है। अभी उससे थोड़ी देर पहले आप ये बात कर रही थी कि बहुत अच्छा ये हुआ कि अब हम लोगों के बारे में बच्चे जानेंगे, हमारे पास बच्चे जानने के लिए आएंगे। तो ये जिज्ञासा जो पैदा हुई है ना इस ऑपरेशन के बाद, इस सफलता के बाद, इसी का जिक्र आप करेंगे। यूथ में जो आया है, जो नए बच्चे आए हैं, उनमें हमें उनको पता, अवेयरनेस आएगी बेसिकली। अभी तक किसी को अवेयरनेस ही नहीं थी सोसाइटी में, अब जाके स्पेस में लोगों को रुचि आने लगे, डेवलपमेंट होने लगा है सर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये मुझे कि अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं ना,
ये तो शुरुआत है, ये जश्न अभी कम नहीं होने वाला। अभी हर तरफ देश के कोने कोने से हमें तस्वीरें देख रहे हैं। इसका ये जो क्षण है, ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल फोरम पर। तो अपने आप में ये जो मैसेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज हम जाके पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेड बजट में, एक लिमिटेड टाइम में और दूसरी ही बार में जाकर डायरेक्टली लैंड करना। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हमने चंद्रयान भेजा था पहला, तो हमने एक बार में उसे डिप्लॉय कर दिया था, एक बार में हमने उसे डायरेक्टली मून के अराउंड भेज दिया था। मंगलयान जब हमने ऑर्बिटर भेजा, उसको भी एक बार में भेजा। इवन चंद्रयान 2 ही एक ऐसा मिशन था जो हमारा फेल हुआ। चंद्रयान 3 में अगेन हमने दूसरी बार में ये चीज सक्सेसफुल कर ली, जो कि बहुत ही लिमिटेड बजट में था। जबकि हम बाकी कंट्रीज को देखें तो उनके पास इतना ज्यादा बजट है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बिल्कुल एक लिमिटेड चीजों में भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये तो बहुत बड़ा क्षण था जिसके साक्षी आप बने और हम भी बने। अब इससे आगे आप इसे कैसे देख रहे हैं? मेरा सीधा मतलब ये है इस पर कि कितना बड़ा मैसेज है ये इंटरनेशनल फोरम पर।